everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So today's topic is a light. Now firstly we understand what is a light. So you might have seen a beam of sunlight when it enter a room through a narrow opening or a hole. You may also have seen a beam of light from the headlamps of a scooter, cars, engines of trains. Similarly, a beam of light can be from the torch. You may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. Do you experience suggest? So now, before reading the concept of a prism, some important points we have to read about light. The first one is the incident ray. The light ray which strike any surface is called incident ray. कोई भी light ray जो strike होती है किसी surface पर उसे हम incident ray बोलते हैं. Next one is a reflected ray. The ray that comes from the surface after reflection. जो ray like this is a prism. This is a incident ray. When it goes into prism and it is a reflected back. So the ray that comes from the surface after reflection, जो reflection के बाद उस surface से बाहर आती है उसे reflected ray बोलते हैं. Next one is the angle of incidence. The angle between the normal and the incident ray. जो angle create होता है normal में और incident ray में उसे angle of incidence बोला जाता है और हम इसे mathematically आए और आगे angle के साइन से represent करते हैं. Next one is a angle of reflection. The angle between the normal and the reflected ray is known as angle of reflection. जो angle create होता है normal और reflected ray में उसे angle of reflection बोला जाता है. Students, now we can understand this concept with the help of a dramatically drawn diagram. So firstly you have considered this is like a mirror. When an incident ray strike on a mirror, it goes reflected back towards it. This is the angle of incident and this one is the angle of reflection, and each angle is created by 45 degree and normal is formed here. So angle of incidence and angle of reflection like this. Next one is the laws of reflection. Angle of incident is always equals to angle of reflection. Angle of incidence हमेशा ही angle of reflection के equal होते हैं. This is known as the laws of reflection. इन्हें laws of reflection बोला जाता है. This is a prism and each now we can understand prism like a triangle. हमें triangle का concept पता है और maths में triangle chapter में हम normally ये पढ़ते हैं कि जो triangle होता है उसकी हर एक side 60 डिग्री की होती है. So एक्चुअल में ये +2 में कॉन्सेप्ट आता है तो अभी आपके लिए इतना मस्त नहीं है, वो अलग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट वन इज़ अ डिस्पर्शन ऑफ लाइट. व्हेन वाइट लाइट पास इनटू अ प्रिज्म एंड इट स्प्लिट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज़ नॉन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. जब भी कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म में पास होती है और उसके वो 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है उसे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं और जो फॉर्मेशन होती है वहाँ पर विबग्योर की होती है. सो लाइक यहाँ पर स्टूडेंट्स एक प्रिज्म है, ठीक है, और इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे स्ट्राइक होगी प्रिज्म पर और ये इसके बेस के इक्वालिटी में पैरेलल हो जाएगी और यहाँ पर एक स्क्रीन है. इस स्क्रीन पर ये जो रेज़ हैं वो 7 कलर्स में स्प्लिट आउट हो जाती हैं और एक विबग्यो की फॉर्मेशन क्रिएट होती है. सो ईच कंटेन 60 डिग्री. सो इसका जो हर एक एंगल है वो 60 डिग्री का है. Topic, most important topic is a prism split a beam of light into its 7 colors. So कैसे ये हैपन होता है? Take a glass prism, allow a narrow beam of sunlight through a small hole in a window of a dark room to fall on a face of a prism. आप एक ग्लास प्रिज्म लो और एक सनलाइट की एक नैरो बीम आए. आपने एक एक्टिविटी ऐसी क्रिएट करनी है लाइक डार्क रूम में. मेनली क्या होता है ग्रेजुएशन लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हम मोनोक्रोमेटिक एंड डाइक्रोमेटिक सोर्सेज लाइट्स का यूज़ करते हैं. उसमें ये एक्टिविटी को हम एक परफॉर्म करते हैं. पूरा प्रॉपर डार्क रूम होता है साइंस का, तो वहाँ पर इसकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो एक स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हमें विजुलाइज होती है. सो स्पेक्ट्रोमीटर के कॉन्सेप्ट में जो प्रॉपर फाइन लाइंस होती हैं प्रिज्म की वो हम ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. बट अब
लेकिन अगर हमने इसको स्कूल लेवल पर परफॉर्म करना है तो वहाँ पर डार्क रूम में हम इसे नहीं परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली क्लास में टीचर्स इसे परफॉर्म करवाते हैं एक्टिविटीज़ को। सो वहाँ पर हमें जस्ट एक नॉर्मल सनलाइट की नीड होती है। सनलाइट की हेल्प से जब सनलाइट एक प्रिज्म में पास होती है तो नॉर्मली उसमें 7 स्प्लिट आउट कलर्स होते हैं जिसे विबग्यो फॉर्मेशन बोला जाता है। और इससे हमें ये विजुलाइज होता है कि जो सन हमें मेनली येलोइश कलर की उसकी लाइट दिखती है, एक्चुअल में वो येलो कलर नहीं है, वो 7 कलर्स होते हैं। सन में आपने कभी भी आफ्टर रेन देखा होगा कि एक बैंड क्रिएट होता है रेनबो का, जिसमें वो 7 कलर्स में हमें शो होता है, लाइक जैसे 2 3 4 5 6 7। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या होता है, लाइक जैसे यहाँ पर सन है, ठीक है, और जब बारिश आती है तो जो सन की रेज़ होती हैं जब इस ड्रॉपलेट्स में से वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो एक रेनबो की फॉर्मेशन वहाँ पर क्रिएट होती है। और ये जो 7 कलर्स हैं हमें नॉर्मली विजुलाइज होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के एक लाइक जस्ट एज अ एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल है जो कि नॉर्मल हम देख लेते हैं जब बारिश का मौसम होता है, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली इसे हम परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी के थ्रू। सो दिस shows that the consist of a 7 colors. The light is said to be white light. This means that the white light consists of a 7 colors. Try to identify these colors and note their names. These are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. So these 7 colors are formed here and this is known as a Vibgyo formation. Vibgyo formation is formed here. सो स्टूडेंट्स इसको एक्टिविटी के थ्रू भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया हो टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड हैव अ नाइस डे।